Hello everybody, good morning. Just please confirm if I'm audible or not. Just give me a ping in the chat box. Am I audible and the screen visible? Just a ping in the chat box. Okay, very well, thanks. Well, in the chat box, I have dropped a code which we were doing. Last week we left at this point, at this juncture, I think. राइट, यहाँ पर कहीं पर हमने ड्रॉप किया था. यस दीपक, प्लीज गो अहेड. Hello, am I audible, sir? Yeah, Deepak, loud and clear. Yeah, very good morning, sir. Actually, sir, I tried to download that library Swirl, right? SWIRL, but I am unable to do so. And then, as per the recording, because the last 20-minute session I left because of my network issue, I was not there. So I updated also, as you have pinged me over the, down the line the packages part in the R. But still, I am unable to, download that library. So can you help me out with that part, sir, first? No, very sure. Okay. Anybody else facing I have, trouble with that sword lessons? and also, sir, I have dropped you the error message over your WhatsApp in a personal. You can check it over there. That what error I am getting. Permission denied. Deepak, are you using your company laptop? Is it so? No, sir. This is my personal one. I have different one for the company part. I mean work part. I'm doing this work, complete work, and this webinar from my personal laptop, sir. Okay. It is that your folder is secured. Just go and make this folder public. जो folder का path mentioned है ना दीपक इसमें. Okay, so can you show me on the screen, please, sir? That will just now. Whatever this folder path is coming, go to C users. You go to your desktop and go to जो भी लिखा है उसमें जाते जाओ वहाँ पर. C users. Within users मेरे को admin और public दिखा रहा है. आपके उसमें Dell दिखा रहा होगा. Go to documents or pin library and eventually you will reach somewhere here. pin library. इनमें से ये देख लेना कोई सा भी फोल्डर सिक्योर नहीं होना चाहिए. If this folder is secure, most probably this folder is secure. Your documents. Okay, sir. I'll check that. Check that out. And one more, sir. I'm thinking on the chatbot, sir. The last query they gave us, no, for the practice part, the local one, wala. Okay. That whether the employee is local or not. So just a second, I am putting it in the chat board that what query I'm getting over there. I'm getting an error over there when I'm putting it for the console. Just check. I've dropped it. You are using capital C. R does not know who is capital C. The function is a small c for combine. वो error है.
Okay. Amit, what is the issue you are facing? Maybe just switch on mic, Amit. That's fine, Deepak. It's happening, Amit, because I don't think you are if connecting this. When you install a package, you have to attach it to environment also. We do it by library function. So do this for once, library solve, and after that, if you type solve, then this function will run. Very fine. Okay, so you may give it a try. Okay, I don't see any other question coming in, so I think it's time we continue. Very fine, others. We were here, we were talking about some vectors, vectors within vectors. We have seen vectors are linear set of values, just like a single column, single row, single column in a data set. वही vector हो गया. Vector can be a number. For example, we took an example that some company who is recording age of their employees. So they have created a vector age and it contains age of 5 employees. We see the class. Class is the function to check data type of any vector. Class says it's numeric. We checked in which city these employees work in. So it is saying it is a character vector. Then there is a column locale, which where they record whether this employee is local of the same city or this employee has come from another city and he is there for the job sake. So this is a local vector. Locale is a logical vector, Boolean vector, true or false values are. I think very much settled so far. What else could be? और क्या हो सकता है? किसी डेटा सेट में और कैसा कॉलम हो सकता है? क्या और डेटा टाइप कोई पॉसिबल है? Somebody, can you please? Can somebody think of it? ओके, डेट्स हो सकता है. यस, टाइम एक डेटा टाइप हो सकता है. डेट एंड टाइम एक डायमेंशन हो सकता है. बिल्कुल ठीक है. एग्रीड. चलो उसकी बात करते हैं थोड़े से समय में. इसके अलावा एक चीज हो सकती है प्रैक्टिकली, ये जितने डेटा टाइप्स हैं इनका मिक्स एंड मैच हो सकता है. एग्जैक्टली. जयंत, थैंक यू. मिक्स एंड मैच हो सकता है. मिक्स एंड मैच इन द सेंस, चेक इट आउट.
अभी अगर जो वेक्टर्स आप बना रहे थे ये डेटा सेट में दिख रहे होंगे, कैसे दिख रहे होंगे जो हमने बनाए हैं अभी, एज, सिटी ऑफ वर्क, ऐसा ही कॉलम तो बनता जा रहा है ये। देन देयर इज लोकल, जहाँ ट्रू और फॉल्स चल रहे होंगे। नाउ देयर इज द कॉलम विच दे आर रिकॉर्डिंग शिफ्ट। किस शिफ्ट में काम करता है ये वाला आदमी? They have divided 24 hours of a day into 3 shifts, 8 hours each, and they are recording. Huh? I don't know if you are available aware of, and that's very popular in manufacturing domain. In fact, in mm, call centers also. Mix and match कैसे होगा इसमें? जयंत, not exactly like address. Address is idea. चलो ठीक है, देखते हैं। शिफ्ट में वो लोग कैसे एंटर कर रहे हैं डेटा? एक एक डेटा एंट्री ऑपरेटर है, वो एंटर करता है 1 2 3। तो उसका डेटा ऐसे ही चल रहा है। जिस दिन उस डेटा एंट्री ऑपरेटर ने एंट्री की है इनकी शिफ्ट, वो एंटर करेगा 1 2 3 3 2 1। एक दूसरा जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है, उसकी हैबिट है रोमन्स में एंटर करने की, रोमन नंबर्स में। सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट। गेटिंग इट? आर में करेंगे तो ये कैसा दिखेगा? यही एंट्री अगर आर में कर रहे होंगे तब मेरे को वो कैसा दिखेगा? समथिंग लाइक दैट। देयर इज अ शिफ्ट वेक्टर, it is a combination of various values, small c, and then there is first, second। अच्छा, कहीं पे 1 2 3 आ रहा है, कहीं पे सेकंड फर्स्ट आ रहा है। सेकंड फर्स्ट जो है वो तो आई से रिप्रेजेंट होते हैं, कोट्स या डबल कोट्स में हमें भेजने पड़ेंगे। ठीक है। ये हमें आपका स्पेशल कैरेक्टर वॉट एवर इज इन डबल कोट्स, जो भी डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में है, आर के लिए वो सब स्ट्रिंग हो गया। एवरीथिंग इज स्ट्रिंग नाउ। आई हैव क्रिएटेड दिस शिफ्ट वेक्टर। एक शिफ्ट वेक्टर मैंने क्रिएट किया है। नाउ आई एम ट्राइंग टू प्रिंट इट। लेट्स प्रिंट दिस वेक्टर, एंड व्हाट डू वी सी? समथिंग नोटिसेबल? Something worth your attention here? Check the environment. Check the environment. शिफ्ट जो मिक्स एंड मैच था, कुछ नंबर्स थे, कुछ अल्फाबेट्स थे। इट इज ऑल क्या बता रहा है उसकी डेटा टाइप, एनवायरमेंट आपको? सेकंड थिंग टू नोटिस, यस, मैंने एंटर किए थे 1 3 2 नंबर्स। नंबर्स, अभी नंबर्स में भी डबल कोट्स आ रहे हैं, देख रहे हो? व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दीज नंबर्स आर नॉट नंबर्स एनीमोर, नाउ दे आर कैरेक्टर फॉर आर। It is happening because of, it is called data type preference. That is also almost common to all the languages, all the coding languages. There will be a sequence of data type preference.
Most preference, the first preference will be to character, second preference to number, and last लॉजिकल। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके डेटा में मिक्स एंड मैच हुआ, आपके इस वेक्टर में मिक्स एंड मैच हुआ डेटा टाइप्स का, तो प्रेफरेंस वो कैरेक्टर को देगा। इन अदर वर्ड्स, अगर एक भी कैरेक्टर हुआ आपके पूरे वेक्टर में, तो सब सारी वैल्यूज को वो कैरेक्टर ही ट्रीट करेगा। ठीक है। मीनवाइल इट इज गेटिंग डिफिकल्ट। तरनदीप, रोमन को विदाउट स्ट्रिंग में क्यों नहीं लिखा? बिकॉज रोमन इज नॉट नॉट नंबर। वो रिप्रेजेंट करने के लिए ठीक लग रहे हैं, लेकिन वो वैसे नंबर नहीं है। वो आर के लिए नंबर नहीं है, वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए वो नंबर नहीं होता। देयर नंबर्स आर ओनली दोज ब्रिटिश नंबर्स 0 to 9। Any further question? Anybody? What is use of mix and match? There is no use of mix and match per se, but just imagine being a data analyst, you will come across these kind of data entries. You should know that you will feel them. You will face these things. Yes, exactly, Deepak. That's what happening here. मेरे डेटा एंट्री ऑपरेटर का इंटेंशन था नंबर चाहे इसको 1 और 2 और 3, लेकिन यहाँ पर कुछ मिक्स एंड मैच हो गए, कुछ कैरेक्टर्स भी थे। तो पूरा आपका जो वेक्टर था उसका क्लास अब मैं देखूं, इट इज ऑल कन्वर्टेड इनटू कैरेक्टर डेटा टाइप में। हियर इन द चैट बॉक्स जस्ट कॉपी पेस्ट एंड रन। और ये सब कुछ आप टाइप नहीं करेंगे, ठीक है? जो 3-4 लाइन मैंने रन किए हैं अभी, यू जस्ट कॉपी पेस्ट एंड रन द। When you are done, just ping me that you are done. I'll wait for a few seconds. Please respond. There are some 30, 35 people. I would expect to see people responding. Okay, ठीक है। जिनका कोडिंग बैकग्राउंड होगा वो जानते होंगे, इसको कोएर्शन बोलते हैं। If you are done with this, here comes something else. I want you to run it by yourself and tell me if there is a problem or do you understand it fully. Here it comes in the chat box. Understand it fully. Try to understand क्या हो रहा होगा, execute करो और देखो वही हो रहा है क्या जो तुम सोच रहे थे। Do it this way.
Look at one line of the code at a time. Try to see what it is doing, what it should be doing. Then run it and just match what you imagined. If it is the same, what is happening. Okay, most of you are getting it. Sir, I'm not So getting like it. that. Same here, sir. I'm not getting. I think I'm not Just don't switch on mic every time. getting. Just drop in the chat box. I got your part, Hardik. Another is Even the previous one, I'll mute. Unmute. explain the result but not with clarity. Okay? On the same word. Okay? ठीक है? Not able to. Okay? Not able to do so. What were you not able to do so? At least you must have run this. Okay? Stay for once. पहले ये देख लेते हैं. I see many of you are getting it. Not all of you. Certainly. What is here happening? पहले तो वाला एग्जांपल देख लेते हैं फिर बताता हूँ इसको. नंबर 1 पहले तो ये देख लो कि इनमें हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, क्या करता होगा ये काम. This piece of code, what is it doing? Remember हमने लास्ट टाइम भी बात किया था बोर्ड मास रूल. अंदर क्या हो रहा है? There are 3 values, one is false, 3 and 12. 12 in alphabetical 12, and we have combined this. So this becomes a vector. और अब उस वेक्टर का मैं क्लास पता करना चाह रहा हूँ. ये हो रहा है इस लाइन से. Rather than saving this vector into a variable name, ये वेरिएबल हमने सीधे वेक्टर लिखा और इसका क्लास पता कर रहे हैं. ये हो रहा है यहाँ पे. अच्छी बात है. नाउ इस वेक्टर में 3 तरह की वैल्यूज आ रही हैं. एक लॉजिकल है फॉल्स, देन देयर इज नंबर 3, देन देयर इज कैरेक्टर 12. हम अभी बात कर रहे थे कि कैरेक्टर प्रेफरेंस एक काम करता है. सबसे पहले प्रेफरेंस कैरेक्टर को होगी. अगर मिक्स एंड मैच हो रहा है मेरे वेक्टर में तो देखा जाएगा कि उसमें हाईएस्ट डेटा टाइप कौन सी है. तो अगर मिक्स एंड मैच ऐसा हो रहा है, कैसा हो रहा है यहाँ पे, कैरेक्टर, नंबर और लॉजिकल तीनों का मिक्स एंड मैच हो रहा है, तो हाईएस्ट प्रेफरेंस किसकी जाएगी? अभी देख रहे थे, कैरेक्टर जाएगी. देखते हैं क्या ऐसा ही हो रहा है. देख लिया होगा तुमने करके, ऐसा ही हो रहा है.
बढ़िया। नेक्स्ट लाइन में क्या हुआ? अब की बार मिक्स एंड मैच किसका है? एक नंबर है, कुछ तो नंबर है, कुछ लॉजिकल है। तो मिक्स एंड मैच कैसा हुआ? न्यूमेरिक और लॉजिकल क्लास का। ठीक। अगेन वही कर रहे हैं, कुछ वैल्यूज हैं और उनके कॉम्बिनेशन से हमने वेक्टर बनाया और उस वेक्टर को अब क्लास चेक कर रहे हैं। हाँ जी, क्या आना चाहिए? समझ गए होगे अब तो। सही बात है। किसका मिक्स एंड मैच है? नंबर और लॉजिकल का। किसे मिलेगी प्रेफरेंस? नंबर को। अब देखते हैं। हाँ वही हो रहा है। ठीक है। और लास्ट में मैं क्या कह रहा हूँ? एक वेक्टर है फॉल्स। पहली बात तो ये देखो कि ये फॉल्स वैल्यू ही एक है, इसे कंबाइन करने की जरूरत ही नहीं है। इसे कंबाइन करो मत करो क्या फर्क पड़ रहा है? सही बात है, वेक्टर तभी तो बनेगा जब सेट ऑफ वैल्यूज होगा। अभी तो ये सिंगल वैल्यू है। तो ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं एटॉमिक वेक्टर। अगर मैं बना दूंगा सिंगल एक ही वैल्यू का वेक्टर, तो इट इज कॉल्ड एटॉमिक वेक्टर। इट इज अ वेक्टर बट विथ सिंगल वैल्यू। तो इसकी क्लास क्या होगी? क्या होगी इसकी क्लास? लॉजिकली होगी। मिक्स एंड मैच हो ही कहाँ रहा है? तो इसकी क्लास लॉजिकली है। ठीक है जी, ये बात हुई थी। आई थिंक सयाली, दीपक, नाउ दिस इज सेटल्ड। एंड हार्दिक। सयाली, तुम्हें कंफ्यूजन इसकी वजह से हुआ होगा कि ये अंदर कंबाइन कैसे हो रहा है ना? तो कुछ नहीं हो रहा, ब्रैकेट के अंदर ही वेक्टर बना रहे हैं। मैं उसको डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, एनवायरनमेंट में नहीं ला रहा हूँ। और ब्रैकेट विद इन ब्रैकेट आर सॉल्व कर सकता है। दैट वी हैव एस्टैब्लिश्ड। हाँ यस हार्दिक, आउटर ब्रैकेट, जो बाहर वाले ब्रैकेट हैं वो क्लास फाइंड आउट करने के लिए वो, ये बाहर वाला ब्रैकेट जो है, दिस वन, ये क्लास फंक्शन का है। अंदर वाला ब्रैकेट जो है वो कंबाइन फंक्शन का है। ओके, यहाँ तक ठीक हुआ। कमिंग डाउन टू सम वेक्टर ऑपरेशंस। शॉर्ट लेसन्स में आप लोग कर पाए हैं, जो लोग कर पाए होंगे पहुंच गए थे वेक्टर तक इजीली। कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम ऐसा तो नहीं रहा? ओके, फाइन। Vector operations in the sense, first thing you will need to learn indexing.
the accessing element of vector. Run this and try to get what it is doing. This code. It is a commented code. Just copy paste it as it is in the chat box there. We are creating a vector. Its name is my vector. See what we are doing there. Hanji. First thing to notice is this is first time we are using something called the square bracket. This is a square bracket बोलते हैं. Not audible. Can somebody? Okay. Just a moment. Just a moment. Maybe it happened. Now please confirm if I am audible clearly. Guys, please confirm if I am audible. I have tweaked my connection for once. I hope I am audible now. Okay, very fine. Okay, what we are doing here is we are accessing this square bracket. It is used to access elements within a vector. Vector is set of multiple values. I don't need all the values. I need some certain value. So this square bracket means I am going to a location in this vector. अच्छा ये ध्यान रहेगा. पैरेंथेसिस यानी फंक्शन हो रहा है. स्क्वायर ब्रैकेट यानी लोकेशन, किसी लोकेशन पर जाने की बात कर. These two brackets mean different things. ठीक है. So we are going to third element. Third element is, हाँ जी, third element is it's 14. स्पेशली जिनका सी, जावा, पाइथन थोड़ा बहुत जिन्होंने देख रखा है उनके लिए बता रहा हूँ. बाकी लैंग्वेजेस में इंडेक्सिंग बिगिंस एट 0. पहला एलिमेंट होता है 0, 0th एलिमेंट, एंड देन देयर आर 1 2 3. So this is noteworthy here, especially in R. Indexing begins at 1. First element is first element, second element is second element. R में सिंपल है भाई. ठीक है, फर्स्ट को फर्स्ट बोलते हैं. So indexing begins at 1. Okay. No, in Python indexing begins at 0. वही बता रहा था.
Then there is something called sequence. Sequence in the sense you want to access multiple elements. Here it is. Yes, Hardik. If you even if you type vector 0, it will show you that it is numeric 0. Numeric 0 means that it is a numeric, but such value does not exist. ठीक है, वो बता देगा कि डेटा टाइप तो न्यूमेरिक होना चाहिए था, लेकिन ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, जीरो एलिमेंट होता नहीं। ठीक है जी। सीक्वेंस मींस मैं क्या कह रहा हूँ, 2:4 का मतलब हुआ स्टार्ट विथ 2 and end at 4 and take all the elements in between. So 2, 3, 4 essentially it means it should be 8, 14, 10. Okay, what if I say index element number 1 and 4? Try it out. I want you to index element number 1 and 4. Just print element number 1 and element number 4. हाँ, तो उसके लिए कोड क्या लिखोगे आप? Try it yourself. Try to code yourself and see if it is working. Or else it's not working. Okay, some of you have done it. We do it this way. Here in the chat box. You have done it 1 to 4, Manish, I think. 1:4 कर दिया तुमने, तो वो सारे एलिमेंट प्रिंट कर दिए। मुझे सारे नहीं चाहिए, मुझे फर्स्ट चाहिए और फिफ्थ चाहिए। Nikita, your answer is correct, but how did you do it? अच्छा, okay. See why we are doing it this way. Why I can't type 1 and 4 directly? अगर मैं सीधे लिख दूँ 1,4 and I try to execute this, it throws me an error. Error because yes, स्क्वायर ब्रैकेट में दिस कॉमा दिस का मतलब होता है these are two dimensions. उसका कहने का मतलब क्या है? These are number of rows and these are number of columns. So this is kind of, yes, array या matrix या जो भी कहो इसको, it is denoting that there are some rows, there are some values in this dimension, and then there are some columns, some values in vertical direction.
वेक्टर, हमारा तो वेक्टर था, उसमें तो रोज कॉलम्स कुछ थे ही नहीं, वो तो बेचारा दिस इज अ सिंगल लाइन ऑफ वैल्यूज, इट इज थ्रोइंग एरर। तो मैं करूंगा कैसे इंडेक्सेस को, मल्टीपल वैल्यूज को? आई मेंशन इट लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडेक्सेस। नाउ इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिसेस। अब आर को समझ आता है कि हाँ, इट इज अ वेक्टर, और वेक्टर में से मैं कुछ मल्टीपल वैल्यूज पूछ रहा हूँ। Fair. So if you want to access multiple values, if they are in a sequence, you provide the sequence, this to this. If they are not in a sequence, you provide a vector of indices कि ये इंडेक्स पे जाओ और मेरे को वो वैल्यू उठा के दे दो। नाउ ओके, ये कहने सुनने में अच्छा लग रहा है ये सारी चीजें, अब प्रैक्टिकली ऐसा सिनेरियो होता नहीं। Why it shows one and I don't know what you are doing, Hardik. It is doing perfectly fine on my screen. I created a vector. I want to access its third value, its third element. Here it is, 14. I want to access last three elements, that is 2, 3 and 4. Here they are. I want to index first and fourth element. Here they are. एन की तो कोई बात नहीं हुई अभी। There is no NA. Try it for once. Try it again. I don't think कुछ मिस हो गया होगा हार्दिक। Okay. Just a moment ago, I was saying that these are just for your understanding. Practically, we are not doing it this way. Akash, it uh, understand the context. मैं किस context में बात कर रहा हूँ? What your code is doing is it is indexing my vector from first value to fourth value, 1 2 3 4। एक बात बताओ, अगर मुझे सारी ही वैल्यू प्रिंट करानी है तो फिर मुझे 1 to 4 लिखने की जरूरत ही क्या है? 1 colon 4 सीधे माई वेक्टर ही प्रिंट कराऊंगा ना, सारे एलिमेंट आ रहे हैं उससे। मेरा क्वेश्चन क्या था कि मेरे को इंडेक्स करनी है फर्स्ट वैल्यू और फोर्थ वैल्यू, बाकी वैल्यूज नहीं चाहिए। तो उसके लिए ये कर रहे थे कंबाइन। व्हाट डू यू वांट मी टू शो हार्दिक? मैं अभी वो कर ही तो अभी अभी तो किया है। माई वेक्टर के 4 एलिमेंट ये असाइंड है, माई वेक्टर का थर्ड एलिमेंट वो तो 14 होता है, सेकंड से लेकर फोर्थ तक ये रहे सारे। सारा भेज तो रखा है कोड में, दोबारा भेजूं? Okay, fine. Here it is something on my screen. It is not available to you. Just don't type it. भेज तो मैं दूंगा। What do you think आंसर कैसा आने वाला है इसका? It is a condition essentially. Readable है? Is my code legible to everybody?
5, 8, 10, Shivam, okay, I don't know why you are considering it. 5, 8, 10, okay, that's again coming in 5, 8, 10. मैं कह रहा हूँ माई वेक्टर इज इट रीडेबल, पहले तो ये बताओ। दिस वन, द हाईलाइटेड वन। यहाँ लिख रहा है कोई माई वेक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तुम्हें क्या लगता है कि आंसर आता होगा? One thing is that somebody said 5, 8, 10 and somebody सर other backed it up with 5, 8, 10. I don't know what is the reason why are you considering 5, 8, 10? किस हिसाब से लग रहा है कि 5, 8, 10 आलोक आएगा? आलोक सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं थोड़ा श्योर। पीछे रह गया हूँ। हाँ हाँ ये माई वेक्टर आपके एनवायरनमेंट में जो वैल्यूज दिखा रहा है ना, हाँ। वो मेरे वेक्टर मेरे इसमें एनवायरनमेंट नहीं दिखा रहा है। इसके लिए शायद मेरा ये सब जो भी मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ रॉन्ग आ रहा है। तो मुझे आप बताइए, आपने शायद बोला था कि उसके बीच में आप वैल्यूज डालिए, असेस कीजिए एलिमेंट्स। तो वो मेरे से रह गया है, बाकी एवरीथिंग इज फाइन। मैं ये वो एलिमेंट कैसे अपने here is the code in the chat box. Hardik, you can just copy paste and try it. ओके, कंसोल में कॉपी पेस्ट कर दो उसको। Not console, ऐसा एक कोड बना लो, स्क्रिप्ट फाइल बना लो हाँ, and run it there. स्क्रिप्ट फाइल ओपन कर लो ना, कंसोल में डायरेक्ट रन कर रहे हो क्या? डायरेक्ट रन करोगे तो सेव नहीं कर पाओगे इसको। तो यहाँ से एक स्क्रिप्ट फाइल इनिशिएट करो। हाँ नॉर्मल। ओके, माय आर स्क्रिप्ट। ओके राइट, आर स्क्रिप्ट। तो एक ऐसा करके अनटाइटल्ड फाइल ओपन हो जाएगी और यहाँ पर पेस्ट करना शुरू करो और यहाँ पर फिर वो कंट्रोल एंटर लाइन बाय लाइन देख लो, लाइक दैट इट विल बी ओके सर। फाइन। तो रन इट फॉर वंस, बताना इस बार ठीक से हो रहा है क्या। अच्छा, बाकी मैं किस किस का था ये? शिवम एंड देन देयर वाज श्वेता। ओके शिवम, व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि इसका आंसर 5, 8, 10 आ जाना चाहिए? व्हाट वर यू थिंकिंग? It is a condition written. My vector is greater than equal to 10. Okay, you did you were assuming there are brackets. There are no brackets. It is just plain simple condition. Was it same for you also, Shweta? यही था क्या? Sir, yes, actually, I read it like assessing elements greater than or less than 10. That's why. Okay. Okay, fine. Okay, fine. Let's see what's happening here. वो अपने आप से वैल्यूज उठा के नहीं देगा, लेकिन अच्छी बात क्या है, perhaps we talked about this, R was specially designed for data analysis only. तो इसके जस्ट इमेजिन मेरे को आंसर क्या चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरे पूरे वेक्टर की अगर मैं एक कंडीशन भेज रहा हूँ, मेरे पूरे वेक्टर की टेस्टिंग एक ही बार में हो जाए। प्रैक्टिकली मेरे साथ क्या होगा? प्रैक्टिकली मेरे साथ कुछ ऐसा ही तो होगा। प्रैक्टिकली मुझसे कोई ये नहीं कहेगा, सपोज मेरे पास देयर आर 100 एम्प्लॉइज इन अ कंपनी, somebody is this, somebody is this, somebody this, just practically tell me। और इस तरह से अगर मेरे पास ये thousands of thousands एम्प्लॉइज हैं, hundreds maybe if not thousands,
मुझसे कोई क्या बोलेगा? मुझसे कोई ये नहीं बोलेगा कि तुम्हारे डेटा सेट में ये जो 15th और 16th नंबर वाले एम्प्लॉयज़ हैं, ये बताओ मेरे को। अगर मुझसे कोई ऐसा पूछ रहा होता तो मैं क्या कहता, स्क्वायर ब्रैकेट 15 पे चले जाओ। 16 भी चाहिए, ठीक, ओके 16 भी है यहाँ पे, कंबाइन, दोनों को निकाल लो, दोनों केस देख लो। लेकिन ऐसा होगा क्या? मुझसे ऐसा कोई नहीं बोलेगा। मुझसे कोई बोलेगा तो बोलेगा क्या, मेरे को वो एज बताओ जो 50 से ज़्यादा है। मेरे को उन एम्प्लॉय की एज दिखाओ जिनकी एज 20, जो 25 से कम है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। अब आर यू जेलिंग टू इट? प्रैक्टिकली मुझसे कोई ऐसा बात नहीं करेगा कि 100 नंबर और 110 नंबर पे जाके देख लो किसकी एज कितनी है। मुझसे कोई बोलेगा तो क्या बोलेगा, मेरी ये कंडीशन है, इस इस आदमी की एज बताओ, इस आदमी की सैलरी बताओ, उस आदमी का डेजिग्नेशन बताओ। ठीक है, तो वही देखना चाह रहे थे। तो अब मेरी इच्छा क्या होगी कि मैं एक एक वैल्यू चेक नहीं करनी पड़े मेरे को कि ये 50 से बड़ा है कि नहीं है, ये बड़ा है कि नहीं है, ये बड़ा है कि नहीं है। एंड आर एम्पावर्स मी फॉर द वेरी सेम थिंग। मैं पूरे वेक्टर को एक चीज से कंपेयर कर रहा हूँ, जस्ट लाइक हेयर। मैं क्या कह रहा हूँ, आई एम कंपेयरिंग दिस फुल वेक्टर दैट वेदर इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। और उसने क्या किया है, इट हैज कंपेयर्ड दैट वेक्टर टू 10। अगर वैल्यू 10 से ग्रेटर देन और इक्वल है तो ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। 5, हाँ 10 से कम है, फॉल्स। 8 10 से कम है, फॉल्स। 14 के लिए ट्रू एंड 10 के लिए ट्रू। ऑल गुड। Somebody has logged in with name Narendra Modi. Why are you so embarrassed of your own name? Please correct it. हाँ exactly Deepak. If there were 1000 values in this vector, you will get 1000 true and false. कुछ के लिए true होगा, कुछ के लिए false होगा, definitely वही होने वाला है। सही सोच रहे हो। हाँ और ठीक है ऋषभ, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब अगली बात आई, ठीक है ट्रू फॉल्स तो आ गए, वो एज कहाँ है, क्या वो भी पता चल सकते हैं? हाँ चल सकते हैं। So rather than indexing like that, you will be indexing your vectors and other datasets like this one. मेरी एक कंडीशन थी और उसने बताया कहाँ ये ट्रू है कहाँ फॉल्स है। नाउ पे अटेंशन टू दिस वन। नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन विच इंडेक्स आई हैव टू इंडेक्स, किस इंडेक्स पे मेरे को एक्सेस करना है एलिमेंट। I am not interested in 2 and 3 and 4. I am interested in a condition. I want, wherever this condition is true, index my vector as those elements. And here in the chat box, see it for yourself.
Getting it? We are getting the idea behind it, right? काम आसान है, अब तो कुछ मजेदार सा लग रहा है ना? हाँ हाँ आते हैं, देखते रहो, वो भी कर लेंगे। Okay, I'm stopping recording for a couple of minutes. ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया था। So this is condition based indexing. I don't want to index by essentially numbers, I want to index by condition. मुझे नहीं पता था ये कंडीशन कहाँ ट्रू होगी, मेरे को बस वो चाहिए जहाँ ये कंडीशन ट्रू हो वो लाके दे दो, irrespective of index number. Indexing अगर नंबर से करोगे that begins at 1, so that is something to keep in mind. Now there is something negative indexing. Negative indices, and what do they mean? Here is again there is a code, it is commented already, it is already commented. I just want you to see, run it and see what it is doing. Rather than mentioning like 3, I have mentioned this time it is -3, and check this out what it is doing differently. Yes, you got the idea. What it is doing is it is returning all the elements other than 3, so that is negative indexing. Yes, if I say square bracket 3, that means I need third element. If I say square bracket -3, it means I need all the others but not 3, everything but 3. So third element, which was 14, it has dropped it and it has given me all the other elements. Now again pay attention to this one. You do again, I would say you don't need to type it, just understand and get the idea. मैंने क्या लिखा, my vector the square bracket -3 and I have run it. It has printed all the elements other than third element. Pay attention to this one. It is just printing. It is just printing. Original vector remains the same. Original vector change नहीं हुआ है. Original vector जो my vector था, अगर मैं उसे देखूं उसमें अभी भी सारे ही एलिमेंट हैं. ठीक है, समझ रहे हो? -3 करने से ऐसा नहीं कि एलिमेंट ड्रॉप हो जाएगा उससे. वो जो मेरे एनवायरनमेंट पे है वो तो वैसा ही है जैसा था, उसने सिर्फ प्रिंट करके दिखाया. हाँ, मेरे को अगर ये चेंज करना है, मेरे को ये वेक्टर में चेंज भी चाहता हूँ, आई वॉन्ट इट टू ड्रॉप फ्रॉम वेक्टर. अभी उसने सिर्फ प्रिंट दिखाया था मेरे को कि अगर ड्रॉप करोगे तो प्रिंट देखने में कैसा लगेगा. आई वॉन्ट टू मेक अ परमानेंट चेंज, तो वो कैसे होगा? आई एम सेइंग माई वेक्टर -3 assign this to what? My vector. Think about it, अभी क्या होने वाला है. शायद मैंने बोला होगी कभी,
कोड राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट होगा, तो राइट टू लेफ्ट ही पढ़ते हैं, RHS टूवर्ड्स LHS, उर्दू की तरह कोडिंग हमेशा ऐसा चलेगा। कैसा चला रहा है कोडिंग? अभी तक जो माई वेक्टर था उसमें से थर्ड एलिमेंट ड्रॉप कर दो, वो क्या होता है, वो वैल्यूज कौन होती हैं, वो वही होती हैं जो हमने प्रिंट करके देख रहे थे अभी, जो अभी प्रिंट करके देखा था। और क्या कह रहा हूँ, नाउ दिस सेट ऑफ वैल्यूज इसे असाइन कर दो किस पे, इसी नाम पे, माई वेक्टर पे। तो क्या होने वाला है, थिंक अबाउट इट, हमने देखा था अगर सेम वेरिएबल नेम पे मैं बार बार कुछ एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या होता है, ओवरराइट होता चला जाता है ना। यस, इट इरेजेस ऑल प्रीवियस असाइनमेंट्स एंड द लास्ट वैल्यू रिमेन्स। जो भी लास्ट में असाइनमेंट किया होगा वही बचेगा, बाकी सब गॉन। लेट्स चेक इट। और अब मैं प्रिंट करके देखूं माई वेक्टर, नाउ द चेंज इज सेव्ड, अब वो चेंज स्टोर हो गया, ठीक है। जो भी थर्ड एलिमेंट पे था दैट इज ड्रॉप्ड एंड नाउ इट इज अ वेक्टर ऑफ 3 एलिमेंट्स 5, 8 एंड 10। दीपक वही होने वाला, अगर माइनस नहीं करोगे तो क्या करोगे, फिर तुम क्या कह रहे हो, जस्ट चेक इट आउट। अब तुम कह रहे हो कि माई वेक्टर का थर्ड एलिमेंट उठाओ और उसे स्टोर कर दो माई वेक्टर में। मैं कह रहा हूं करके देख लो ना। मल्टीपल वैल्यूज रिमूव करने के लिए अमित जैसे मेंशन करते थे, मल्टीपल वैल्यूज अगर इंडेक्स करनी हो तो मैं कैसे देता था, ऐसे तो देता था, मैं देता था कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज, कॉम्बिनेशन ऑफ लोकेशंस। आप कह रहे हो कॉम्बिनेशन ऑफ लोकेशंस एक्सेस कर दो तो सी, आप कह रहे हो कॉम्बिनेशन ऑफ लोकेशंस ड्रॉप कर दो तो -C, नेगेटिव। ट्राई इट आउट, करके देखो, प्ले अराउंड। ठीक है। ठीक है, आइडिया मिल गया दीपक कैसे होगा। अब वो थर्ड एलिमेंट उठा करके स्टोर कर देगा माई वेक्टर नाम पे, और तो माई वेक्टर की नई वैल्यू क्या होगी, वही थर्ड एलिमेंट, बाकी सब चला गया। Now there are some mathematical operations I'm telling you. Again, run it one by one. It is for your own good. मेरे को बहुत जल्दी से आप रन करके आंसर बता दो, मैं वो नहीं चाहता हूँ। आंसर आंसर तो मुझे वैसे ही पता है, तुम क्या बताओगे। So don't do it that way. I want you to try to understand it. Execute once, देख लो उसको and try to find it out कि किस लाइन से क्या execute हो रहा है, क्या आना चाहिए आंसर। Think about it, वही आ रहा है क्या? Check it for once. Just before executing, try to think कि क्या हो रहा है इस लाइन से। And when you see the result after executing, find कि क्या वही हो रहा है या यही होना चाहिए था। If it is happening your way, जो भी तुमने सोचा है वैसा ही हो रहा है, then I think I am making a point here. कुछ confusion है तो बताना, then we will talk in detail. वैसे सिंपल है, समझ आना चाहिए इससे। बड़ी सिंपल सी बात। लाइन नंबर 1 हमने एक वेक्टर बनाया, उसका नाम मैंने रखा है ऑड वेक्टर बिकॉज इट कंटेन्स ऑड वैल्यूज।
ओके, फिर हमने एक दूसरा वेक्टर है दैट इज, उसको हम कह रहे हैं इट इज इवन वेक्टर। हाँ, उसमें इवन वैल्यूज हैं। नाउ समबडी सेज add these two vectors, odd vector plus even vector, and add them, और उससे हम एक नया वेक्टर कह रहे हैं एडेड वेक्टर बन जाए। now this is where, this is the place where money is involved. Money in the sense the juice is involved. क्या समझते हो क्या आना चाहिए? One idea could be 1 3 5 7 2 4 6 8 elements after elements, ऐसा ऐड हो जाएगा। So this will be a new vector which will have 8 elements. ऐसा आइडिया हो सकता है कुछ लोगों का, या कुछ और भी हो सकता है। यस निकिता, योर क्वेश्चन प्लीज, स्विच ऑन योर माइक। नाउ इट्स फाइन। So here it is like 4 elements are only mentioned. What if in some of the statement there are 5 elements? Coming on to it, just a moment. Okay. To that also. यहाँ तक इसमें तो कंफ्यूजन नहीं। इसमें दो आइडिया हो सकते हैं। एक आइडिया कि ऑड वेक्टर प्लस इवन वेक्टर का मतलब क्या होगा। इस वेक्टर का मतलब होगा नया वेक्टर कैसा बनेगा, 1 3 5 7 2 4 6 8। हाँ, दीज वैल्यूज और इनके बाद दीज वैल्यूज ऐसे ऐड हो गए। नॉट एग्जैक्टली। और हो कैसे रही है, कैसे हो रही है? दिस प्लस दिस प्लस दिस, ऐसे ही तो हुई है। देख लिया होगा अब तक तो आप लोगों ने। एलिमेंट वाइज इसका पहला एलिमेंट विद इसका पहला एलिमेंट वो बन जाएगा एडेड वेक्टर का पहला एलिमेंट। सेकंड प्लस सेकंड बिकम सेकंड एंड सो ऑन, ऐसा हो रहा है। राइट, तो अगेन समथिंग नोटवर्दी है, आर के सारे ऑपरेशंस एलिमेंट वाइज होंगे। वेक्टर ऑपरेशंस आर ऑलवेज एलिमेंट वाइज, एलिमेंट टू एलिमेंट। हाँ, the question comes, why is that so? Is it anyway helping me? Now, if you ask me about programming, no, it is not helping thing. But if you ask me data analysis, yes, it is helping. Pay attention to this one. For example, I don't know आप में से किसी ने डोन एप्लीकेशन भरा है कि नहीं कभी। You know, if you are demanding some सपोज आपने कुछ लोन अमाउंट डिमांड किया है, यू आर अप्लाइंग फॉर से हाउसिंग लोन। यू नो व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ बैंक। पहली चीज सबसे इंटरेस्टिंग क्या होगी बैंक के लिए, देखना आपके फॉर्म में। वेरी इंट्यूटिव एक्चुअली। As simple as that. Yes or no? तो पता है पहली नजर में वो मांगेंगे, वो आपसे सैलरी स्लिप दिखा दो या बैंक स्टेटमेंट दिखा दो या ये बता दो और वो बता दो। इवेंचुअली व्हाट दे वांट टू नो इज व्हाट आर यू अर्निंग। कहने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं उसको। नाउ यूजुअली इट हैपेंस, आपने लोन डिमांड किया है, से यू आर अप्लाइंग फॉर होम लोन, you have demanded a loan of 1 CR. Maybe your income is, maybe say 1 lakh. Just imaginary scenario. I don't know how many of you can apply this kind of loan and how many of you are having this kind of income. I am not having, I am not applying. Let's have imaginary scenario. Let's feel good. Someday I am applying loan of 1 CR. That kind of thing. Okay, ठीक है. So say you are applying a loan, your income is this, and you know bank is not very comfortable.
bank is not very comfortable because with this kind of income, it seems this kind of loan will not be possible to repay. You will not be able to repay it. तो बैंक दो तरह की बात करेगा आपसे. क्या बात करेगा? नंबर एक, ये अमाउंट कम करा लो, ये अमाउंट कम करा दो, इतना लोन नहीं ले पाओगे, इतनी उसमें कंफर्ट नहीं आ रहा है बैंक को देने में इतना पैसा आपको. बैंक इज वेरी skeptical that with this kind of income you will be able to pay this kind of amount. Doesn't seem likely. और what you can do is, हाँ जी, उनके एप्लीकेशन में क्या होता है, एक कॉलम और भी होता है, co-applicant income. Can you make somebody co-applicant in this loan? Anybody in our first relation does the job. Parents, kids, they do the job. Brothers, sisters, wife, they do the job. Suppose spouse के नाम से co-applicant डाल दिया and spouse is also having an income. ठीक है, तो बैंक को अब कंफर्ट आ रहा है कि दैट उन्हें इस बात से मतलब है कि टोटल पैसा कितना जा रहा है इस घर में. अब इनके पास इतना पैसा आ रहा है तो अब शायद ये वाला अमाउंट या एक जो भी उनको कंफर्ट आ रहा है वो बढ़ जाएगा सडनली बैंक का लोन. नाउ टेल मी, बैंक के पास पहुंचे 50 एप्लीकेशन ऐसे, लोन दे दो, लोन दे दो, इतना दे दो, उतना दे दो, ऐसे ही 50. ठीक है, उनके पास तो फॉर्म भरा हुआ है, एप्लीकेशन इनकम आ रही है कि एप्लीकेंट की इनकम आ रही है, को एप्लीकेंट की इनकम आ रही है. जिन्होंने को एप्लीकेंट दिया होगा वहां कुछ फिगर आ रही होगी, जिन्होंने नहीं दिया होगा वहां 0 0 आ रहा होगा. ऐसा ही तो हो रहा होगा. आते हैं एनालिस्ट के जीवन पे. उनके एनालिस्ट को किस बात से मतलब है, उसको क्या गाइडलाइन होगी, उससे किसी ने यही तो बोला होगा कि भाई इनका टोटल इनकम कैलकुलेट करके दे दो जरा. बैंक को फाइनली इसी बात से मतलब है ना कि एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट दोनों मिलकर कितना इनकम ला रहे हैं घर में, उस हिसाब से हम लोन अमाउंट देखें. तो व्हाट आर दे इवेंचुअली वांटिंग, व्हाट इज देयर डिजायर आफ्टर ऑल. हाँ जी दीपक, आप पूछ रहे थे वो क्या चाह रहे होंगे, एलिमेंट नंबर 1 प्लस एलिमेंट नंबर 1 वो बन जाए इसका एलिमेंट नंबर 1. समझ गए, रो नंबर 2 वो बन जाए रो नंबर 2 में टोटल इनकम. एलिमेंट वाइज एडिशन चाह रहे हैं वो ऐसा नहीं चाह रहे कि एप्लीकेंट इनकम के नीचे को एप्लीकेंट इनकम का कॉलम आ जाए. सो दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ आर को डेटा से ही डील करना है और डेटा में मेरा इच्छा जब भी होगी ऐड करने की, so I would want this kind of addition, this kind of operation, element wise. ठीक है जी, so that's why R offers me this facility. आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, which was essentially by निकिता. निकिता कह रही है इसमें भी 4 एलिमेंट, इसमें भी 4 एलिमेंट, तो एडेड वेक्टर में भी 4 एलिमेंट, हर एलिमेंट से हर एलिमेंट ऐड हो गया. अब निकिता कह रही है कि इसमें एक कम होता है और उसमें एक ज्यादा होता तो क्या होता. सपोज ऑड वाले में एक 9 भी है एलिमेंट, सेम कोड विद दिस 1 एक्स्ट्रा एलिमेंट कर लो, या तो कॉपी पेस्ट कर लो, मैं चैट में डाल रहा हूँ, नहीं तो लिख दो, जरा करके देख लो क्या होता है, करके देखो और बताओ मेरे को भी क्या हो रहा है. आलोक सर, यस यस हार्दिक. सर ये जो एडेड वेक्टर है उसके जो असाइन वैल्यूज है वो मेरे सिस्टम, मेरे एनवायरनमेंट 3 7 5 13 9 है. तो is it I am performing the right? I think I made a mistake here.
मे बी यू हैव चेंज द वैल्यू, तो अगर वैल्यू आ रहा है तो सर प्लीज, आप मुझे ये जो आपने किया था ना सर अभी, वो तो मैं समझा, आपने एक्सेल में बहुत अच्छे से समझा है, वेरी ग्रेट एग्जांपल, वो समझा मुझे। हम्म, तो ये मुझे जो ओल्ड वेक्टर है, इवन वेक्टर है, ये मैंने यहाँ पे मेरे एनवायरनमेंट में लाया है, मतलब आई हैव ब्रॉट दैट वैल्यू एज एन, बट व्हेन यू आस्क अस टू एडिट वेक्टर, then that minus sign with that greater one and that old vector plus even vector, तो मैं जब ये करता हूँ ना एंटर सर, तो यहाँ पे वार्निंग मैसेज, इन ओल्ड वेक्टर प्लस इवन वेक्टर लॉन्गर ऑब्जेक्ट लेंथ इज नॉट मल्टीपल ऑफ शॉर्टर ऑब्जेक्ट लेंथ। यस तो एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट। मैं काम मिस्टेक कर रहा हूँ। नो, यू आर नॉट मेकिंग मिस्टेक, एक्चुअली दैट वाज द होल पॉइंट। यही ओके क्वेश्चन। ओके मीन्स ओके, मतलब उसके यस, सॉरी, आई अनम्यूट इट, आई लिसन टू इट, यस सर। आई वांटेड यू टू गेट दिस। यही क्वेश्चन था निकिता का, इफ दीज वेक्टर्स, इसमें 4 एलिमेंट थे, इसमें भी 4 एलिमेंट थे, तो एडिट वेक्टर में भी 4 एलिमेंट आ गए। अगर एक वेक्टर इज लार्ज, अनदर वेक्टर इज शॉर्ट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? अब मैं जब ऐड कर रहा हूँ, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले तो आर ने आपको एक वार्निंग इशू किया है, राइट? आर इज ट्राइंग टू हेल्प यू आउट। वो बताना चाह रहा है कि कुछ समथिंग इज अनयूजुअल हेयर, तो प्लीज पे अटेंशन। कहने का मतलब ये। तो वार्निंग जब दिया है, पढ़ लेते हैं उस वार्निंग को क्या कह रहा है। वो कह रहा है लॉन्गर ऑब्जेक्ट इज नॉट मल्टीपल ऑफ शॉर्टर ऑब्जेक्ट लेंथ। चलो ठीक है, स्टिल इट इज अ वार्निंग, स्टिल इट इज नॉट एरर। एरर नहीं है, कुछ गलत नहीं हुआ है, इट इज जस्ट दैट वार्निंग इशू किया। तो देखते हैं हुआ क्या है फाइनली। तो फाइनली हुआ क्या है, उसने आंसर में एडिट वेक्टर बना है कोई 5 एलिमेंट का। यू आर गेटिंग एडिशन कैसा हुआ है, एलिमेंट नंबर 1 विद 1 3, 2 with 2 7, 5 with 6 11, 7 with 8 15, that much is pretty sorted। यहाँ तक तो वही हुआ है जो हमेशा होता है। इसके बाद जो एलिमेंट आया है 11, वो पता है कैसे हुआ है? इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट था, तो इस एलिमेंट के साथ उसने क्या ऐड करना शुरू कर दिया है, इस वेक्टर को रिपीट करना शुरू कर दिया है। इसका पहला एलिमेंट उठाया, वो ऐड कर दिया, वो बन गया 11। इससे आगे भी कुछ होता तो फिर सेकंड एलिमेंट उठा लेता, फिर थर्ड एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर अनइक्वल लेंथ हुए आपके वेक्टर के, सो इस तरह का वो प्रॉब्लम देने वाला। कमिंग ऑन टू दिस, कितने एंग्जियस हो यार तुम लोग। मैंने मैंने बताओ कितने क्रेडेंशियल्स बताए तुम्हें अभी कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, तो मैं ठीक पढ़ाऊंगा यार, यकीन तो करो। तुम मान ही नहीं रहे हो। चलो ठीक है, मत मानो। आई थिंक आई नीड अ फ्यू मोर डेज विद यू। ठीक है, यहाँ तक ये तो क्लियर हुआ। अगर एलिमेंट लेंथ इक्वल नहीं हुआ, तो वो नेक्स्ट दोबारा से उठा के रिपीट करना शुरू कर दे। ये प्रॉब्लम होता कैसे हो? ये प्रॉब्लम आता कैसे होगा? कि मेरा ये वेक्टर तो छोटा है, वो वेक्टर तो बड़ा है। वही जो एक्सेल शीट आपने देखा था अभी, रिमेम्बर? वही डेटा जो आपने देखा था अभी, मे बी कस्टमर नेम, ओके, उसने कितना लोन अमाउंट मांगा है, ओके, और मे बी इनकम, ठीक है, मे बी को एप्लीकेंट इनकम, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है? जो भी कस्टमर है, एक कस्टमर है, कस्टमर ए, उसने अपनी इनकम बताई है समथिंग समथिंग,
उसने अपनी इनकम बताई है, कुछ तो भी बताई है, से 25K, और उसने को एप्लीकेंट की इनकम बताई है से 20K समथिंग, चलो मान लिया। दूसरा एलिमेंट है, दूसरा कस्टमर आया बी, उसने अपनी इनकम बताई है से 40, और वो कह रहा है मेरे पास कोई एप्लीकेंट है ही नहीं। चलो ठीक है, ब्लैंक छोड़ दिया आपने, नहीं बताया उसने। सी, फिर कुछ बताया, फिर कुछ बताया। तो हो क्या रहा है, यहाँ पर तो एलिमेंट आ रहे हैं भाई, हर कस्टमर की मेरे को इनकम तो चाहिए, तो यहाँ पर तो एलिमेंट बराबर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर 10 कस्टमर हैं तो 10 इनकम आएंगी, लेकिन 10 के 10 के पास कोई एप्लीकेंट होगा, इट इज़ नॉट नेसेसरी। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? नाउ दिस इनकम एलिमेंट, इनकम वेक्टर, दिस इज ऑफ 10 एलिमेंट्स, दिस को एप्लीकेंट, दिस मे बी एलिमेंट ऑफ 7 एलिमेंट्स ओनली, बाकी के पास कोई एप्लीकेंट नहीं है। तो कैसा रिप्रेजेंट करेंगे उसको? तो देयर कैन बी टू वेज, या तो जिनकी को एप्लीकेंट, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय, वही जो किसी ने तो बोला था, वी कॉल इट, इस एग्जांपल से सोचो, शायद ये ऑड वेक्टर था, मेरे को 1 3 5 7 9 5 एलिमेंट थे, इवन वेक्टर में भी मेरे को 5 एलिमेंट दिखाने थे, लेकिन मैं कैसे दिखाता, तो वो शॉर्ट रह गया। शॉर्ट रह गया तो एडिशन कैसा हो गया, एलिमेंट वाइज हो गया। अब तुम्हारा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सपोज तुम्हारा प्रॉब्लम क्या था, तुम्हारा प्रॉब्लम ऐसा था कि ये सब ऐड हो जाने चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि 9 जाके ये 2 से ऐड हो जाए, इस बात का सेंस नहीं था कुछ। मैं चाहता था कि यहाँ पर जो 9 के सामने वैल्यू नहीं थी वो ना मिले और 9 का 9 रह जाए। ठीक है, इस तरह की चीज़ों को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन ए से। एन ए मीन्स नॉट अवेलेबल, मेरे पास ये वाली वैल्यू अवेलेबल नहीं। So NA is, again, if you type capital N capital A, you will see that it comes in sky blue font, same as true and false. So this is also a special notation, जिससे R को समझ आता है कि किसी स्पेशल कैरेक्टर की बात हो, किसी स्पेशल चीज की बात हो। So right now just don't try to add it like that। अभी NA है, मिसिंग वैल्यू है, तो वो ऐड नहीं होगा। एडिशन में वो 9 नहीं दिखाएगा, वो NA दिखाएगा, वो वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। बट फिलहाल ये बता रहा हूँ कि लेंथ बराबर होनी चाहिए वेक्टर्स की, एंड इफ इट इस तरह से शॉर्ट पड़ रहा है, इट मीन समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, वी रिप्रेजेंट इट बाय मिसिंग वैल्यू। एन ए रिप्रेजेंट्स समथिंग विच इज नॉट अवेलेबल, मिसिंग वैल्यू। ओके, not exactly sure, we'll talk about it, we'll talk about it just in a moment, just in a few minutes, coming back onto this thing. Okay, let's create another vector, my vector 1 this time. Here it is in the chat box, just run it, you know what's going to happen. Run it and check it, क्या हो रहा है। We are moving on to functions now, inbuilt functions and how they operate on vectors. So first we are currently we are dealing with number vectors.
आई थिंक एज सिंपल एज दैट, एक वेक्टर है एंड यू आर कंपेयरिंग इट विद ए वैल्यू, और हमने देखा था कि आर में सारे ऑपरेशन इंडेक्स वाइज होंगे। इट विल स्टार्ट ऑफ विद इंडेक्स 1 और कंपेयर करके लाएगा 5 से, 5 से बड़ा है तो ट्रू, छोटा है तो फॉल्स। कैन यू थिंक ऑफ इंट्यूटिवली, आई वांट टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस वेक्टर। मिनिमम वैल्यू मेरे को इस वेक्टर की निकालनी हो तो क्या हो रहा होगा, क्या करना चाहिए? So there are many inbuilt functions to do these kind of values, and they are pretty intuitive. Here it is. The function is min parentheses. Parentheses का मतलब function काम कर रहा है, right? Got it? Maximum निकालनी हो तो max function. बड़ी सिंपल बात है। इन वैल्यूज का सम देखना हो तो देख लो जरा करके, अगर ना हो रहा हो तो बता भी देना कि नहीं हो पा रहा, हम बस हाँ वैसे ही मत करते रहना। मैं जो बोलता जा रहा हूँ, सिंस इट इज वेरी इंट्यूटिव, तो मैं आई डोंट वांट टू स्पेंड टाइम ऑन ईच एंड एवरी फंक्शन which are way too intuitive. Just try them out. अगर नहीं हो रहा तो बता देना, then don't shy away. ठीक है, कितना भी nitty-gritty क्वेश्चन लगे आप लोगों को, आपकी समझ में वो कितना भी स्टूपिड क्वेश्चन क्यों ना हो, do ask, don't shy away. बिल्कुल बेशर्म होकर पूछ लें। You know, there is a saying in data science that there are no stupid questions, there are only stupid answers. So which is my job to give. Yes, 25 आना चाहिए। ठीक है, everybody getting this thing? Min, max, हाँ मैक्सिमम वैल्यू देखनी हो किसी को, कोई बोल दे कि इस वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू फेच कर दो तो मैक्स फंक्शन, मिनिमम तो मिन। सम देखा है तो आपने सम। आई वांट यू टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ दीज वैल्यूज, प्लीज ट्राई। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, आई वुड जस्ट वांट कि कोड क्या किया है आपने और आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है उससे। अगर आंसर आ रहा है तो वो कोड बताना मेरे को कि आप क्या कर रहे हो। आई वांट टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ दीज वैल्यूज। मैक्स से एवरेज कैसे आएगा आकाश? डन डिवाइडेड बाय 25, क्या कर रही है ईशा? what is that supposed to be? अच्छा, यू आर टॉकिंग अबाउट सम, ठीक है, सम सम के लिए ठीक है। मैं एवरेज, एवरेज नहीं आ रहा, एवरेज इज नॉट हैपनिंग। टेल मी, एवरेज इज नॉट हैपनिंग, इट इज बिकॉज हाँ समझ गया था मैं, समझ गया था मैं। Can't able to find answer of average, okay I know that, because usually you are habitual of function average, SQL में होता है AVG, Excel में होता है average, in R it is not average, it is a bit, you know, R is very succinct and R is very concise and crisp. So average function doesn't work here. The function name is mean. Yes. So
एंड एक्चुअली दिस इज द सिनेरियो. एवरेज तो बहुत सारी तरह का एवरेज होता है, यू नो. आई डोंट नो इफ यू नो और नॉट. मीन, मीडियन, मोड, these are all average in their own sense. पता है ना, ये कुछ होते हैं, कुछ मीन होता है, कुछ मीडियन नाम की चीज़ भी होती है, और कोई तो होता है जिसे मोड भी कहते हैं हम. आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू नो एवरीथिंग, बट सुना है कभी ना? या हर्ड ऑफ इट, द 3M. बड़े खराब आदमी होते हैं ये, मिलने वाले हैं बस तुमसे थोड़े ही दिनों में. हाँ शिवम, ये सारे के सारे जितने भी लिखे हैं तुमने मिलने ही वाले हैं बस तुमसे. याद है ना वो काला दिन जब ये 11th में आए थे, जीना ही हराम कर दिया था. नहीं नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं होगा. मैं अच्छे से कराऊंगा तुम्हें. ठीक है, घबराना नहीं मेरे रहते किसी भी चीज़ से. Okay, moving ahead. So this was your, first cue that there will be many functions which seem like average से average निकल जाएगा. It has happened many a times in my training to very senior people जो coding में habitual भी थे. So average is one such. Average निकालने के लिए हम main function use करते हैं, not avg. That is not a function that does exist in R. I want you to sort this vector in some order. Can you do that? Can you think of a function? Sort this my vector 1 in any order for that matter. Leave it for Rishabh. Rishabh, it will see on a sincere note, on a very sincere note. It can be ascending or descending. Nikita, I'm not bothered. Please go ahead. You are trying. That is very fantastic. To everybody, I am saying. मैं तो I myself encourage you people to try many things. It is not a stamp paper जहाँ पैसे नुकसान हो जाएंगे, पैसे कट जाएंगे अकाउंट से. It is just a script file. Try whatever you want. Okay, finally, Paras discovers it. The function is, yeah, got it. Very intuitive. So these are various functions. There is a vector. I run sort parentheses माने sort function को मैं argument दे रहा हूँ. The argument is my vector. So sort function sorts it 1 3 5 7 6 9. Sorts it in what order? It is sorting it in ascending order. I want you to sort it in descending order now. How can you do that? For descending order, try a few things. Is it working, Ajinkya?
I don't think it's working. It's working. Okay. Nikita and Rishabh, okay. Yes, Deepak, of course, I'll explain. Well, I'll not explain. You know who will explain? Rishabh, do you mind? कहाँ से ढूंढा ये तरीका? कैसे पता चला? Nikita, Ajinkya, all of you, those who have done this, please contribute. कैसे कैसे मिला ये? Ajinkya, use logic. So that is pretty much, it is going to be a part of your life if you want, if you really want to exist in this domain. Use several logics. Just fool around with the commands now. Do it. As I said just a couple of minutes ago. It will not penalize your bank account ना. पैसे तो नहीं कट जाएंगे अकाउंट से. कुछ सही होगा, कुछ गलत हो जाएगा, एरर आ जाएगा. Try it. No worries. Or maybe you can make me proud and do something intelligent. What Nikita is saying. Stick to auto suggestions. उसने क्या किया होगा मैं बता रहा हूँ. When you try to sort this, जब आप sort करते हैं, it gives you auto suggestion. ये बता रहा है आपको, यहीं पे देख रहे हो. It is telling you sort is a function. उसका आर्ग्यूमेंट क्या हो सकता है, and then it is showing something auto suggestion kind of thing. I think that's what you mean, Nikita. यहाँ से पिकअप किया. From here you picked it up. Fantastic. ऋषभ का कहना है, if you check help document, see these things should come into your habit. मुझे क्या समझ आ रहा है, और ये आने लगेंगे, trust me. This after this weekend you are going to start off with other lessons of sword, a bit advanced level of sword. कल बात करेंगे लेक्चर ऑफ करने से पहले. बट ये धीरे धीरे आपके हैबिट में आना चाहिए. सॉर्ट देख करके आपको समझ आना चाहिए कि सॉर्ट फंक्शन है जो मेरे वेक्टर को सॉर्ट कर देता है, वही कर देता है जो उसका नाम है. बट करता कैसा है, असेंडिंग ऑर्डर में. क्या कोई तरीका है तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में भी मिल जाए. सो लेट्स लुक द हेल्प, लेट्स चेक द हेल्प डॉक्यूमेंट ऑफ सॉर्ट फंक्शन. देखा था ही हमने, देयर इज हेल्प डॉक्यूमेंट अवेलेबल फॉर एवरीथिंग. तो immediately you should go to the help document and check is there a facility in this function कि जिससे मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर भी मिल जाए. ठीक है, तो यहाँ पर सारे फैसिलिटीज, सारे आपको आर्गुमेंट उसने बता रखे हैं. क्या बता रहा है, दैट x शुड बी अ वेक्टर. किसी भी टाइप का वेक्टर हो, इट शुड बी अ वेक्टर. देन देयर इज अ डिक्रीजिंग पैरामीटर. ये देख रहे हो ना, सिंटेक्स में उसने दिखाने की भी कोशिश की आपको. बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स रहता है. फॉल्स इन द सेंस, आप क्या कह रहे हो आर से, सॉर्ट कर दो इस वेक्टर को. क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, नहीं चाहिए. जब डिक्रीजिंग में नहीं चाहिए तो किस ऑर्डर में आएगा, इंक्रीजिंग में, असेंडिंग ऑर्डर. यही बात हुई. बट दिस इज द फैसिलिटी, दिस इज द लॉजिकल आर्गुमेंट जहां पर आप ये बता सकते हो. तो वही किया उन लोगों ने. नो वॉइस, आई डोंट थिंक सो. एम आई ऑडिबल? Am I constantly audible, clearly audible? Okay, fine.
तो perhaps it glitched at your end, Taran. ठीक है जी, तो ऐसे मिल जाएगा, और मिल जाएगा तो काम हो चला। Now, much about vector. कल थोड़ा सा हम देखेंगे, थोड़ा सा इन डेप्थ जाएंगे। We will see the data के डेटा में आपके टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स कैसे होते हैं। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है। I'll try to keep it interesting. Still showing error in descending function. रौनक, अगर एरर आ रहा है तो पढ़िए उसको, एरर को क्या है, what is the error it is giving. What is the error, Ronak? Could you apprise me? If I check, okay, sort my vector 1 decreasing is equal to 2, ये देना था. I don't know what you are doing. I think you have just typed decreasing and nothing else. It doesn't work that way. ऐसा दे दिया है क्या? Okay, to mention it like decreasing is equal to true. This is a logical parameter, logical argument. इसकी वैल्यू या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है. ओके, इन्वर्टेड कॉमास में इस टी का मतलब हो गया दिस इज अ कैरेक्टर टी. नाउ इट डजंट मीन ट्रू टू आर. उसका मतलब अब आर के लिए ट्रू नहीं है. ठीक है, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का. डबल कोट्स में जाते ही आर के लिए अब वो एक कैरेक्टर हो गया है. अब उसका जो स्पेशल मीनिंग था आर के लिए वो खत्म. ओके, it seems very fine guys. So let's keep it till here today itself. I'm turning off recording guys, but if there is any question I can I'll stay for a couple of minutes.